کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی پراسرار موت کے کیس میں پیش رفت، عدالتی حکم پر قبر کشائی کل صبح 9 بجے ہوگی، میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ جی مجھے نہیں پتا، مجھے تو آپ کے سامنے ابھی آئی او کا بھی فون آیا تو میں پوچھ رہا ہوں آپ آئی او ہیں اس کیس کے؟ ہمیں تو آئی او کا نہیں پتا اس کیس کا، ہمارا تو وہ بول رہے بیان لینا ہے، تو آج 10 دن کے بعد ان کو ہمارے سے خیال آیا بیان لینے کے لیے۔ ہم نے تو پارٹنر بتایا، میں تو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ پارٹنر کے ساتھ ساتھ ان کا جو بڑا بھائی ہے پارٹنر کا فائنینشیل ٹرم چیزیں وہ دیکھتا تھا، ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ نوجوان تاجر میر رضا کے والد کا پولیس تفتیش پر تحفظات کا اظہار، نہیں جانتا کہ گرفتار ملزمان کون ہیں، یہ تک نہیں علم کے کیس کا تفتیشی افسر کون ہے۔ تفتیشی افسر کو 10 دن کے بعد بیان دینے کا خیال آیا۔ پولیس میر رضا کے کاروباری پارٹنر اس کے بھائی سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کر رہی؟ ڈان نیوز سے خصوصی بات چیت میں میر حسین شاہ کا شکوہ۔ آئی جی سندھ کا میر رضا کا کیس ٹریس کرنے کا دعویٰ، جلد تمام حقائق عوام کے سامنے لائیں گے۔ کیس میں تھوڑا سا ابہام ہوا ہے، میڈیکو لیگل دستاویزی طور پر کچھ اور، زبانی طور پر کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق پولیس کی تفتیش ہوگی۔ جاوید عالم اوڈھو کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور وزراء کے ہمراہ سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا شیڈول اجلاس ملتوی کر دیا۔ ذرائع کابینہ ڈویژن کے مطابق وفاقی کابینہ کا اجلاس اگلے ہفتے تک ری شیڈول کیا گیا ہے، ارکان کو آگاہ کر دیا گیا۔ امریکہ وعدوں پر پھر سے عمل کرنے کے لیے تیار، ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اشارے ملنے کے دعوے کر دیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق جہازوں سے ٹرانزٹ فیس کا معاملہ ایرانی قیادت کے فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہوگا۔ نیا ماڈل پچھلے 7 برسوں سے جاری انتظام سے مختلف ہوگا۔ جہازوں کے راستے کا قابل ذکر حصہ ایرانی پانیوں سے گزرے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے پاس بڑے پیمانے پر اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر موجود ہیں۔ وسیع پیمانے پر اسلحہ تیار بھی کیا جا رہا ہے، ضرورت کے مطابق اسلحہ منگوایا بھی جائے گا۔ دفاعی کمپنیاں ریکارڈ تعداد میں پلانٹس اور فیکٹریاں تعمیر کر رہی ہیں۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان۔ نئے صوبوں کے قیام کے لیے 2/3 اکثریت لازمی، وزیر اعلیٰ سندھ نے آئینی طریقہ کار کی یاد دہانی کرا دی۔ محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، سسٹم کو ناکام کہنے والے ایک بار پھر تھر گھوم کر آ جائیں۔ بات چیت اور بحث و مباحثے میں کوئی مسئلہ نہیں، صوبوں کی تقسیم پر لاشیں نہیں گرنے دیں گے، مراد علی شاہ کی گفتگو۔ نون لیگ کے پاس اگر میجورٹی ہے، دادلی کی میجورٹی ہے تو ان کو تو ہماری ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اب ان کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کا میں نہیں سوچ سکتا کہ میری جماعت کبھی بھی، کیونکہ ہم نے فیصلہ مقامی قیادت کی مشاورت سے کرنا ہے۔ مقامی قیادت میرے پاس بیٹھی ہے، ابھی تک تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام دہرا دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں آزاد کشمیر میں اس سے پہلے مرحلہ وار الیکشن نہیں ہوئے، انتخابات دھاندلی کے ذریعے کروائے گئے۔ نون لیگ نے جبر کے ساتھ الیکشن جیتا۔ الیکشن میں دھاندلی کی بنیاد رانا ثناء اللہ کے بیان سے رکھی گئی۔ نیئر بخاری کی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں صدر کی ججز تعیناتی اسمبلی کی منظوری نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت ججز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 48 گھنٹوں میں جاری کر رہی ہے۔ صدر کے پاس منظوری کے علاوہ کوئی اختیار نہیں۔ وفاق، وزیر اعظم آفس اور وزارت قانون سے جواب طلب کیا جائے، درخواست گزار وکیل کی استدعا۔
सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी को भी कैद तन्हाई में रखने और गैर मुसावी सलूक की तरदीद कर दी। जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन ख़त्म हो चुका, अब ये राइज है और ना ही अदालतें ऐसी सज़ा दे रही हैं। बुशरा बीबी कानून के मुताबिक कैद काट रही हैं, उनके साथ कोई इम्तियाजी या गैर मुसावी बर्ताव नहीं किया जा रहा। बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इजाफी इंतजाम किए गए हैं। आम ख़वातीन कैदियों को उन तक रसाई नहीं दी जाती ताकि उनकी हिफाजत और सलामती मुतासिर न हो। बुशरा बीबी जेल के इस अहाते में आज़ादाना नक़्ल हरकत कर सकती हैं, जिसमें एक बड़ा कमरा, सहन और बावर्ची खाना है। जेल की खातून मेडिकल अफसर रोज़ाना 2 मरतबा उनका मुआयना करती हैं। बुशरा बीबी की खुराक और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की अहम रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। 4 अजला में जारी बोतल ड्रिंकिंग वाटर के पायलट प्रोजेक्ट पर रोज़ाना रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में टैंकर्स के जरिए साफ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर शुरू कर दी गई है और 4 अजला में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के तहत 19 लीटर की 10,000 बोतलें मुफ्त फराहम की गई। मरियम नवाज ने अवाम को दहलीज पर पीने का साफ पानी पहुंचाना अपना आज़म करार दिया और कहा कि पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया का नया तंजीमी ढांचा तश्कील दे दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट की नई असामी तख्लीक कर दी गई। पैरा इंसदाद तजावुज़ात, प्राइस कंट्रोल, एक्साइज और PRA के उमूर होंगे। पंजाब भर में मैट्रिक के नताइज का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने पोजीशन होल्डर्स के लिए नकद इनाम की रकम 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर MD कैट की तारीख तब्दील कर दी गई। मुल्क भर में MD कैट अब 20 सितंबर को होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले ASPs की मुलाकात। ASPs ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज को पेशा वराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए बेहतरीन तजर्बा करार दे दिया। इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सेंटर में मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मुअस्सर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। जराइम की रोकथाम और मौसर निगरानी के लिए वजारत दाखिला के एविएशन विंग में जदीद ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। इंटेरोगेशन को बतौर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मुतारिफ कराया जाएगा। मोहसिन नकवी की ASP से गुफ्तगू। पंजाब में दालों की कीमतें मुकर्रर करने के लिए पहली मरतबा गाइडलाइंस जारी कर दी गई। कीमतों का तयन फैसलाबाद होलसेल मार्केट की बुनियाद पर होगा। किराया, ओवरहेड लागत और मुनाफे का मार्जिन शामिल। खित्ते की गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान टेक्सटाइल बरामदात का रिकॉर्ड बन गया। जुलाई में माहाना बुनियादों पर 43% इजाफा। एक्सपोर्ट 1 अरब 83 करोड़ 30 लाख डॉलर तक पहुंच गई। लाहौर के इलाके डिफेंस बी की निजी यूनिवर्सिटी में 18 साला तालिब इल्म की पुरस्कार हलाकत। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से टॉप स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप के इम्तिहान के लिए बुलाया गया था। अरीब नामी स्टूडेंट की नाश्ते के दौरान अचानक तबीयत ख़राब हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लड़के की मौत की तस्दीक की। रावलपिंडी के बहरिया टाउन फेज 2 से मियां बीवी की लाशें बरामद। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस एहलकारों ने दोनों की लाशें पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में घग्गर फाटक के करीब कार सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस को वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा होने का शुबा।
रावलपिंडी में कमेटी चौक लुंडा बाजार के करीब 5 साला बच्ची गाड़ी में बैठते हुए नाले में गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों का बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। 12 से ज्यादा एहलकार और 5 इमरजेंसी गाड़ियां ऑपरेशन में शामिल। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद पाक फौज का सर्च ऑपरेशन। लापता 10 में से 7 गैर मुल्की कोह पैमाओं की लाशें तलाश कर ली गईं। मैयतें स्कर्दू मुंतकिल। 3 लापता कोह पैमाओं की तलाश। खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से अब तक बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से 9 अफराद जान बहक, 7 जख्मी। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। 103 घरों को नुकसान पहुंचा है। 39 मकानात मुनहदिम हो गए हैं। एबटाबाद, स्वात, बोनेर, खैबर, चित्राल और दीगर इलाकाजात में बारिश के दौरान हादसात पेश आए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई। भारत में मुकीम साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वर्चुअल खिताब पर बांग्लादेश में शदीद गम और गुस्से की लहर। शहरियों के साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी। उनके मुजस्समे जला दिए। मुश्तिल अफराद की बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शकीबुल हसन का घर जलाने की कोशिश। पथराव करके शीशे तोड़ दिए। पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैच जीतने का 3 साल इंतजार खत्म। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने जीत के लिए 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में स्पिन के जाल में फंसकर 117 रन पर ढेर हो गई। साजिद खान और अली उस्मान ने 4-4 शिकार किए। कप्तान बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट स्पिनर और अब्दुल्ला शफीक को दे दिया। ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए मजबूत स्क्वाड का ऐलान किया। जॉय रूट कप्तान बरकरार। टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड में टूर मैच खेलेगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने दौरे श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली। वजीरिस्तान के बासलाहियत नौजवान ने आलमी पक पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। एहसन महमूद ने थाईलैंड के बैनुल अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। एहसन महसूद ने सेमीफाइनल में भारतीय और फाइनल में श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त दे दी। एहसन का दूर दराज इलाकाजात के खिलाड़ियों को अहमियत देने पर जोर। जश्न आज़ादी करीब आते ही बच्चों के जोश व जज्बे में इजाफा। पाक वतन से भरपूर मोहब्बत का इजहार। दरख्त लगाकर मुल्क को खूबसूरत बनाने का अज़्म।